Good morning to all of you and namaste. Dear student, your online test portion is triangle and its properties. Triangle and its property. First is your isosceles triangle and exterior angle property. In worksheet 1, Good morning, sir. in worksheet 1, your total worksheet is based on the exterior angle properties. All of you, please ensure your work as worksheet 1B. Be clear. Next is your angle sum property and isosceles property. Worksheet 2 especially based on angle sum property, isosceles property, exterior angle property. Dear student, please, you must ensure that your worksheet 1, worksheet 2 be complete. Next is your triangle inequality properties. In triangle inequality property, question number 3 is very important question, in which the question is the length of two sides of a triangle are 4 centimeter and 6 centimeter. It means what to measure should the length of the third side fall. ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन भी solved by inequality property, in which inequality property is that sum of two sides always greater than the third side. Here 6 plus 4, their sum is 10. That means third side must be greater than the 10. Greater than 10 नहीं होना चाहिए, सॉरी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन, तो 10 से छोटा होना चाहिए. यानी क्या, जो थर्ड साइड है इससे ये पता चला क्या कि आपका 10 से छोटा होना चाहिए. ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक किया था. और नेक्स्ट है आपका कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. Here difference of these two sides is 6 and 4. 6 और 4 का difference आपका 2 हो गया. That means third side is must be greater than the 2. यानी जो थर्ड साइड लाई करेगा between 3 to 9. ठीक है ना. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर एक एग्जामिनेशन व्यू से आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? पहले सम ऑफ टू साइड को भी दिखा दीजिएगा और फिर सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड को दिखा दीजिएगा. एज जैसे सम ऑफ टू साइड 6 plus 4 equal to 10, always greater than the third side, and 6 minus 4 is equal to 2, always less than the third side. That means your third side lie, it means 3 to 9. ओके, इस तरह से आपके क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करके दिया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर Pythagoras theorem. In Pythagoras theorem, a statement is as the square of the longest side is equal to the sum of the square of other two sides. क्या था? इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, is equal to the sum of the square of other two sides, and their mathematical expression is as h square equal to p square plus
बी स्क्वायर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इस पे ढेर सारे आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्कशीट 4 को भी आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, आज इतना हमने आपको इसलिए डिक्टेट कर दिया जिससे कि आपका सैटरडे की क्लास में अगर किसी बच्चे को हमारे पास प्रॉब्लम होंगे तो यू में आस्क इट। ओके, अच्छा कोई बच्चे एक बार ओरली हम कुछ क्वेश्चंस को करना अगर चाहें तो कोई बच्चे ये बताइए, when the two angles of the triangle are given, the third angle we find out by which property, किस प्रॉपर्टी से हमने थर्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे? Triangle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी से। जैसे मान लीजिए कोई एंगल दिया हुआ है, ये अगर हमारे पास 50 डिग्री और दूसरा एंगल दिया हुआ है आपका 70 डिग्री, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? Sir, 50 degree. Sir, 60 degree. 60 डिग्री, यानी 60 degree. पहले हम लोग सम ऑफ टू एंगल निकाल लेंगे। सम ऑफ टू एंगल इज 70 प्लस 50 120 एंड थर्ड एंगल इज 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। यानी उसमें बनाने का तरीका हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्या? सम ऑफ टू एंगल, जो आपके एंगल दिए हुए हैं, सम ऑफ टू एंगल। माइक को अपने कंट्रोल में रख लीजिए। 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री 120 डिग्री, और तब लिखिएगा थर्ड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। रविशंकर प्लीज। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। एक चीज और बताइए, एक थोड़ा सा आप लोगों से ट्विस्ट करता हूं। When a right angle triangle is isosceles, right angle triangle is isosceles, the measure of the other two angle be? Sir, equal. 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 Their value क्या, उसकी values क्या हो सकते हैं? Set equal. Sir, 45 degree. 45 degree. 45 डिग्री 45 degree. 45 डिग्री। तो इस तरह के बनाने के प्रोसेस हमारे किस तरह से होंगे? कोई एक बच्चा डिक्टेट कर सकता है? Yes, sir. Sir, yes sir. Sir, हाथ उठाइए, कर हाथ सकते हैं। उठाइए, हाथ उठाइए, एक से नहीं, हाथ उठाइए। कौन कौन बच्चे वो डिक्टेट कर सकते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं? एक अनिका हमारी डिक्टेट करेगी। चलो अनिका तुम डिक्टेट करो पहले। Okay, sir. Sir, first we will write an angle. Sir, if there is written, first we will denote the sides with denote the angles with their names. Let angle A, B, C. So we will write according to Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, angle A plus square of angle A plus square of angle B equal to square of angle C. Sir, अनिका, अनिका एक मिनट। अनिका इसमें थोड़ा इंश्योर हो जाइए कि एंगल निकाल रहे हैं ना। प्लीज उदित एक मिनट। एंगल आप निकाल रहे हो तो एंगल का जो रिलेशनशिप है वह हमारे पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे नहीं है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो आपके हैं वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपका साइड का रिलेशनशिप है। Yes, sir. थोड़ा सा आप चुप गए। चलिए उदित। यस सर। सर हम लोग सर हम लोग फर्स्ट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और सर बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, सर द अदर टू अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. So sir, let the opposite angles equal to x
and then sir 90 degree plus x equal to 180 degree. सर फिर हम लोग सर Okay. इस प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते Yes, Sir, yes. 90 plus 2x is equals to यानी sir x is equals to 90 by 2. Sir 2 से 45 डिग्री निकल जाएगा. Yes, yes, yes. चलिए, बहुत सारे बच्चे नहीं, हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो कुछ रिप्लाई नहीं करते। अब क्वारी तो करिए, अगर मान लीजिए जवाब नहीं दे पाते तो बेटा क्वारी करो। क्वारी करने से तुम्हारा हिचक टूटेगा। आप केवल क्लास ज्वाइन करने से नहीं होगा, आपको क्वारी भी करनी चाहिए ना। ओके, एंड आफ्टर द वर्कशीट 4 rest of the worksheet is based on the definition and the properties. तो आई होप सारे बच्चे हमारे उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कहीं भी कोई आपकी कमी ना हो। ओके, अगर किसी बच्चे के पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोग आइडेंटिफाई करके रखिएगा। चलिए अभी आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में। यस सर, आप प्रू रंजन बोलिए, क्या दिक्कत है? सर हाफ ईयरली का सर लास्ट चैप्टर है परसेंटेज। ओके प्रो, ओके सर, थैंक यू। जैसे एक एग्जांपल भी आप ले लो, आगे हम आपके पूछा कि 8, 9, 10 ये ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पूछ रहे हैं। ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर होना चाहिए। तो इसमें हाउ वी चेक द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? फर्स्ट द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट ग्रेटेस्ट नंबर इज 10, स्क्वायर ऑफ 10 मतलब 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या? 10 into 10, 10 into 10 कितना? 100। and next you find out the sum of the square of the other two number. Other two number are the 8 square and 9 square. 8 square is your 64 and 9 square is 81. Their sum is 145. 140. Yes sir, 145. 145. 100 is not equal to 145. That means you can say as 10 square is not equal to 8 square plus 9 square. So the given triplets मतलब 3 number, given triplets are the not the Pythagorean triplets. जब आपके इक्वल हो जाएंगे तब आप कह सकते हो these are the Pythagorean triplets, unless you can say that the given triplets are the not the Pythagorean triplets. Okay? Okay. तो जितने भी बच्चे आप क्वारी अगर करोगे तब मजा आएगा आप क्लास में, अन्यथा आप चुपचाप बैठे रहोगे। पेरेंट्स भी सोचेंगे कि बच्चे मेरे ज्वाइन करके क्या कर रहे हैं। अगर आपकी एक्टिविटी चालू रहेगी तो पेरेंट्स भी काफी खुश होंगे कि नहीं मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, मेरे बच्चे से कुछ क्वेश्चन क्वारी हो रही है। Listen, now we focus on your continuity of the class. Your next topic is your profit and loss, in which the first we discuss in the previous classes as, sorry discuss कर सकते हैं ना, कोई बच्चे को दिक्कत नहीं ना? No sir. Okay. तो प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि when cost price and selling price is given, one new thing is come up, that is the overhead expense, which is the additional amount which is the additional amount spent for the transportation, rent, labor charge, repairing, etc.
अगर आप कोई बाइक ही लेते हो, सेकंड हैंड बाइक लेते हो, उसमें कुछ अदर कॉस्ट पड़ जाते हैं। आप कोई फ्लैट खरीदते हो, उसमें जब आप जाते हो तो कलर कराना पड़ता है, कुछ डिजाइन बनाना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज ओवरहेड एक्सपेंस। तो व्हेन ओवरहेड एक्सपेंस इज कम in such case new CP is for that CP is known as actual cost price, in which we arrange as CP plus overhead expenses। जितने भी एक्सपेंसेस है उस टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस मान करके CP एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड करके उसका नाम देते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। Here actual cost price means what? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मींस वह हो गया कि जैसे आप कोई फ्लैट खरीदे या बाइक खरीदे या कुछ भी ऐसे चीज खरीदे जिसमें आपको एक्स्ट्रा और खर्च पड़ गया, तो यानी वह सामान लेने में टोटल खर्च कितने हो गए, दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट आइटम विल बी काउंटेड एज द ओवरहेड एक्सपेंसेस। उसी में हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस का यूज। ओके, जैसे हमारे बच्चे कभी कभी अभी ऑनलाइन से ही कभी कुछ ऐसे ड्रेसेस मंगाते हैं, वो ड्रेस थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है क्या ढीला हो जाए, तो उसको हम लोग क्या लौटाते नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि नहीं हम अपने से टाइट कर लें, फिट कर लें अपने अनुसार। फिटिंग में कोई भी चार्जेस हो, दैट इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है क्या? स्टूडेंट अनिका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। ओके, हैंड्स डाउन कर लें। Your next question is 400 mangoes were purchased at rupees 125 per 100. 125 per 100. Number 7. Here 400 mango were purchased at rupees 125 per 100 and sold at a loss of rupees 100. Find the SP of 1 dozen orange. At first we find out the cost price, CP of का पहले cost price। yes, CP of 400 mango। आप लोग आम खा रहे हैं कि नहीं? सर खा रहे हैं। यस सर। सर खा रहे हैं, अभी अभी खा क्या है? यस सर खा रहे हैं। सर ओके, सर हम तो लगा भी रहे हैं। अच्छा चलिए, देखिए CP of 400 mango here cost is given rupees 125 per 100, मतलब क्या 100 का 125 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रुपीज 125 पर 100 को आपको फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हो। और ये 400 मैंगो का है तो इंटू 400, अब ये 100 से 4 टाइम्स में कट गए तो ये आपके हो जाएंगे रुपीज सर 500। 500। Here loss is given rupees 100। सर माइनस कर देंगे 100। हाँ, so SP equal to तो माइनस हो जाएगा 100। CP माइनस लॉस। तो CP आपका कितना है 500 माइनस 100, दैट मीन्स SP इज 400। SP कितना हो गए आपके 400। तो ये 400 किसके हैं? Here सर now SP of 400 mangoes is rupees 400। सर एक मैंगो का दाम 1 रुपया है। Yes, so SP of सर 12 मैंगो का दाम 12 ही रुपया ही होगा। yes 1 mango is, तो जब 1 से यूनिटरी मेथड में हम लोग कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर किया जाता है डिवाइड हो जाता है,
डिवाइड होके 1 रुपी यानी ₹1। आपको निकालना है 1 डजन का ना, एसपी ऑफ 1 डजन, 1 डजन में कितने होते हैं? 12। 12. मैंगो इज ₹1 into 12, दैट मीन्स ₹12 आंसर। ये आपके आंसर हो जाएंगे। जब आप सेलिंग प्राइस आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस वो किसका निकलेगा? 400 का। और चूंकि पूछ क्या रहा है आपको 1 डजन का, कॉस्ट ऑफ 12 मैंगो इज ₹12 into 1। और कोई बच्चे बनाए हैं तो अपने सर वहां पे आप सर, मैं कुछ बनाया गलत हूँ। लिख दिए सर। सो एसपी ऑफ 1 मैंगो ना होगा सर, वहां आप मैंगोज लिख दिए। हाँ सॉरी सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी बात। सर मैं बनाया हूँ। चलिए बारी बारी से हम सबको लेता हूँ। 400 के नीचे क्या लिखा हुआ है बाई में? 400 by 400, जिससे कि 1 का मैंगो का 400 by 400 1 रुपीज हो गया। और कोई बच्चे? अनिका बनाई है, सानवी शर्मा, सुनीता शर्मा। बी सेक्शन के कोई बच्चे नहीं बनाए हैं? सर मैं भी बनाया हूँ। जब मैंने बनाया है। ओके, शशांक शर्मा, वेरी गुड। आप लोग भी आइए, एक्टिव बनिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अभी बना दिया। Next question is, a man purchase. A man okay, proof. A man purchase a cell phone for ₹2,000 by paying 200 more. He replace his body if he sell the cell phone for ₹2,500. यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? एक फोन को खरीदता है, वह कितने में खरीदता है? 2000 में। 2000 में। और उसके बॉडी को रिप्लेस करता है 200 रुपीज में, यानी कुछ उसके जो है थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया, जिससे कि वह क्या हुआ? ओवरहेड एक्सपेंसेस में काउंट हुआ। यानी टोटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग ऑफ द सेल फोन, सेल फोन को टोटल खरीदने में उसे कितने रुपए खर्च हो गए? 2000 plus 200, 2000 plus 200, yani at first we write that cost price of the cell phone is 2000 and overhead expense is ₹200, then actual cost price is 2000 plus 200, that is 2200, and selling price is 2500। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? Profit. प्रॉफिट 300 का प्रॉफिट हो रहा है 300 का। प्रॉफिट हो रहा है 300 का। तो इसके प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाले जाएंगे? 2000 पे कि 2200 पे? सर 2200 पे। 2200 पे। 2200 पे। वेरी गुड रविशंकर। इसके जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उस पे इसके प्रॉफिट परसेंट को हम लोग निकालेंगे। बनाने की हमें जरूरत पड़ेगी? नो सर। सर बहुत आसान है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 भी सेम है। राहुल बाय एन अलमीरा फॉर 2000 एंड स्पेंड ₹400 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो कुछ नहीं, सब चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा बन गया। ओके उदित, तो 1 मिनट रुको। और इसमें जितने भी कोई भी चार्जेस अगर लिख रहे हैं उसके एक ही टर्म आप नाम दोगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस।
तो यहाँ पर क्या है, राहुल बाई एन अलमीरा 2000 एंड स्पेंड ₹400 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2400। 2400। प्रेमादित्य कुछ जवाब दीजिए, एक पूछने पर आप उस दिन भी जवाब नहीं दिए थे। और इफ ही सेल, 400 इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ। यस यस, इफ ही सेल द अलमीरा फॉर ₹3000, अगर वह 3000 में सेल कर लिया, 2400 में वह खरीदा, एक्चुअली है क्या प्रॉफिट? 600 का प्रॉफिट। 600 का प्रॉफिट होगा। 600 के क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएंगे सर 600 के। प्रॉफिट। तो ये भी आप लोगों से बन जाएंगे। यस सर ये भी बन जाएगा। ओके, बहुत अच्छे। सारे बच्चे अगर खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छी बात। 25% profit. सर सत्यम कुमार, सत्यम, क्वेश्चन नंबर 4। 25% profit. सर क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर रहे हो। सत्यम कुमार, सर बता दीजिए सर प्लीज। यस सर। आप किस सेक्शन से हो? सर आपकी आपका नाम सत्यम ही है क्लास में भी। सर सर आप बोले कौन सा गाना बजाएं? यस, sorry student. Next is your question number 4. Question number 4 is a man buy 5 dozen of eggs at ₹36 per dozen, out of which 5% got broken. He sold the remaining egg at $4.48 per dozen. What was his total gain? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ एग्स निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से 5% ब्रोकन एग को बाहर करना है। इसको हम लोग देखते हैं बनाते हुए। 3x broken है। कितना ब्रोकन है? 3x। इसमें एक्स मानने की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें? तो क्योंकि 5% broken है। यहाँ जैसे है 5 डजन, 5 डजन एग्स इक्वल टू 5 into 12, 60 eggs। कितना एग हो गया? 60 एग। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 eggs यानी 5 डजन एग्स का कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 eggs इज इक्वल टू ₹36 पर डजन है। तो 36 into 5 डजन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5 डजन ही रहने देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। सिटी ऑफ 5 डजन एग रुपीज कितना हो गया? 180। ब्रोकन एग, broken eggs, 5% of 60, 5 by 100 into
60, इसको बाय 1 कर लीजिए, 5 से कट करेंगे 20 टाइम्स में कट होगा और ये 3 टाइम्स, यानी 3x ब्रोकन है। रिमेनिंग एग, बचे हुए एग कितने हैं? 60 माइनस 3, 57 एग्स। और कह रहा है क्या? ही सोल्ड द रिमेनिंग एग फॉर 48 पर डजन, 48 पर डजन। SP of 57 eggs इक्वल टू 48 पर डजन, इसको लिख देते हैं 48 बाई 12 इंटू 57, 12 4 जा 48, रुपीज 228। अब उसका जो टोटल पे जो है सेलिंग प्राइस आ गया उसका कितना? रुपीज 228, और कॉस्ट प्राइस हो गए रुपीज 180। तो माइनस SP आपका CP से क्या है? बड़ा है। तो प्रॉफिट सर